Alright, so let's start the session for today. The existing students, they already know me quite well, and very good evening to all the new students. A warm welcome to all of you. Most importantly, all of you are in today's session not by chance. आप लोग आज का जो ये webinar attend कर रहे हो, this is not something happening to you by chance. This is something because inside of you already believe that me as a human, या फिर अगर जो भी parents यहाँ पे connected हैं, as a parent your child or you yourself has even more potential. आपका जो potential है that is even more as compared to what the report cards say or what your promotions say if you are working people. So this is not going to be another motivational session, but yes, today's session is going to be quite different. So today I am going to just show you some fascinating insights of our human brain कि हम किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं, हम चीज़ों को फास्टर रिकॉल भी कर सकते हैं, एज वेल एज हम अपनी अकेडमिक परफॉर्मेंस को, बी इट योर अकेडमिक परफॉर्मेंस, बी इट योर वर्क प्लेस परफॉर्मेंस, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो बाय यूजिंग अ सिंपल साइंस. अब वो सिंपल साइंस क्या है? एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, what is that simple science I am talking about? That is basically termed as memory science. इसको हम कहते हैं memory science. So today's session is going to be a free live webinar, but the values that you are going to get, आज का जो webinar है that is totally free webinar, लेकिन जो आप value आज लेके जाओगे after this session, that's going to be priceless. I assure you this thing. So therefore make sure that you don't have any distraction, किसी तरह की distraction ना हो आपके आसपास. If you want to take notes, आप notes भी ले सकते हो and stay till the end because memory challenges करेंगे हम in this session. We are going to discuss so many things that are actually going to benefit all of you. And I want all the students who are attending this webinar, you guys shall participate. For every question, for anything that comes in your mind, either you can raise your hand, आप unmute करने को भी बोल सकते हो, या फिर you can simply put your answers, put your queries in the chat box. I have kept the chat box open parallel, right? So now let's begin with some eye-opening facts. कुछ eye-opening facts से हम आज का session जो है start करेंगे. These are the facts जो ना तो आपको किसी स्कूल में सिखाए गए, ना सिखाए जा रहे हैं, but nobody is going to teach you. अब आप स्कूल में क्या चीज़ सीखते हो? As a student, what do you learn in your respective schools? कि क्या याद करना है? What you should learn about a particular subject, वो आपको सिखाया जाता है, but nobody is going to teach you how to learn. आपको चीज़ों को कैसे याद रखना है, what is the correct way, what is the correct strategy जिसको follow करके आपको चीज़ों को याद रखना है. See, you are basically told what should you learn, कि आपको क्या याद रखना है, but nobody teaches you how, कि आपको किस तरह से याद रखना है उसको. This is what we are going to study today. कुछ अमेजिंग हम पहले ट्रूथ्स देखेंगे अबाउट ह्यूमन ब्रेन, जिससे आपको खुद को लगेगा दैट येस आई हैव अ काइंड ऑफ सुपर पावर है मेरे पास. बिगिनिंग विद द फर्स्ट थिंग, सबसे फर्स्ट इनसाइट से हम स्टार्ट करते हैं. योर ब्रेन कैन जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू इवन पावर अ लाइट बल्ब. नाउ आई मीन दिस, जो ये स्टेटमेंट है, हमारा जो ब्रेन है वो ऑन एन एवरेज 20 वॉट्स, जितने भी यहाँ पे साइंस स्टूडेंट्स हैं दे अंडरस्टैंड द टर्म वॉट्स, 20 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हमारा जो ब्रेन है वो प्रोड्यूस कर सकता है. सो 20 वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज दैट? दैट इज इनफ टू लाइट अप अ बल्ब. अगर मान लीजिए आपको किसी बल्ब को लाइट अप करना है, तो अगर 20 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसे मिलती है तो बल्ब ग्लोज, राइट? सो यू हर्ड मी एक्चुअली राइट. अब यहाँ पर हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं. देयर आर सो मेनी न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन दैट आर फायरिंग सो रैपिडली कि अगर हम अपने न्यूरॉन्स की पावर को हार्नेस करें, देन यू के हैव द पावर टू लाइट अप द एंटायर रूम. सो आवर ब्रेन कैन जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आप अपनी एनर्जी को, क्या आप अपने ब्रेन की पावर को प्रॉपर वे में यूज कर रहे हो? आर यू यूजिंग इट इन अ प्रॉपर वे? दिस इज द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन.
अब यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन का क्या फंक्शन है? एनी स्टूडेंट हु कैन आंसर, एनी स्टूडेंट हु कैन आंसर और वांट्स टू आंसर, बोल के आप आंसर करना चाहते हो या चैट बॉक्स में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का क्या फंक्शन है? एनी स्टूडेंट, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है ब्रेन, उसका फंक्शन क्या है, क्या करता है वो? ओके, नव्या, आई थिंक दिस इज ध्रुवी। ओके, सोचने के लिए, राइट? एनी अदर स्टूडेंट? ओके, Janashi wants to answer. Yes. It controls our body. It controls our body. Right answer. All the systems are controlled in our body through brain. Yes, Pooja. Brain controls our body. Brain controls our body. Right. हम अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं, हम अपने essential functions कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं because of brain. Yes, Mary. Yes, Mary. It is our main part of our body. Main part of our body, right? One student is saying it sends signal to our organs. Right answer. हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसे सिग्नल भी सेंड करता है. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि जो हमारा ब्रेन है इट कैन स्टोर मोर देन 2.5 पेटाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब यहाँ पे लेट मी ब्रेक डाउन दिस, इसको ब्रेक करते हैं. अब यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 3 मिलियन आवर्स ऑफ टीवी शोज. 3 मिलियन आवर्स ऑफ टीवी शोज की जितनी स्टोरेज होती है, जितनी कैपेसिटी है उनको स्टोर करने की, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन. अगर मान लो मैं आज कोई शो देखना स्टार्ट करूं और मुझे उसके 3 मिलियन आवर्स कंप्लीट करने हैं, सो आई वुड नीड 300 ईयर्स. मुझे 300 साल लगेंगे उसे कंप्लीट करने के लिए. So your brain is not small, it has infinite capacity. हमारा जो brain है, your brain, my brain, everybody's brain. But most of the people we treat it like a temporary notepad. जैसे अब notepad होता है, all the computer users सबको पता होगा what is notepad. नोटपैड क्या है? जो एज ओल्ड वे में हम उसको टाइपिंग के लिए यूज करते थे, राइट? सो इंस्टेड ऑफ अ पावरफुल हार्ड ड्राइव हम उसको एक नोटपैड की तरह कंसिडर कर रहे हैं, उस तरह यूज कर रहे हैं. नाउ थ्रू द मेमोरी साइंस आई विल शो यू कि आप किस तरह से स्टोरेज को यूजेबल बना सकते हो. दैट इज गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स इन देयर एग्जाम्स. स्टूडेंट्स को किस चीज में हेल्प होगी? एग्जाम्स में हेल्प होगी. वर्किंग पीपल can benefit in their presentations, in their project divisions, किस तरह से execution करनी है. It also helps in public speaking. Whenever it comes to public speaking, that plays a significant role as well as it plays a very important role in your life. आपकी life में उसका बहुत important role है. Now, our brain is there जो सारी functioning के लिए हमारे organs को guide करता है. राइट, इट सेंड सिग्नल टू आवर ऑर्गन्स. कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि वो इट इज़ द मेजर ऑर्गन, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का ब्रेन. नाउ जस्ट लिसन टू दिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट योर ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फास्टर देन अ कंप्यूटर. कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? कैन यू हेल्प मी? येस जानशी, प्लीज अनम्यूट. हेलो मैम. येस येस येस, यू आर अनम्यूट, यू कैन स्पीक. Okay, I think she's not able to connect with us. So if I see in the chat box, so many students ने reply किया है, म्यांश, प्रदीप, everybody, कि हम सब use करते हैं. We all use. I think class में जितने भी students present हैं, this Dhruv is there, Dhruvi is there, तो हम सब use करते हैं. We all use. Now I am saying you that your brain processes information even faster than a computer. Okay, तन्मय आप भी use करते हो, very good. हमारा जो ब्रेन है कंप्यूटर से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टैट्स के साथ, थोड़ा सा फैक्ट्स के साथ रिलेट करूँ तो हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल जो भेजता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो सिग्नल्स की स्पीड होती है. कैन एनी स्टूडेंट गेस व्हाट इज द स्पीड ऑफ आवर ब्रेन? हमारा ब्रेन, लेट्स सपोज ब्रेन वांट्स टू सेंड अ सिग्नल टू आवर फीट, आवर हैंड्स, आवर एल्बो और व्हाटएवर एनी ऑर्गन, तो क्या स्पीड होगी? Yes, Mary. 1 second per speed. Sorry? 1 second per speed. 1 second लगता है. Okay, good try. Any other student who wants to try? Yes, तन्मय. Ma'am, light speed. Light की speed से. Okay, all right. ये थोड़ी ज़्यादा होगी. Light की speed थोड़ी ज़्यादा होगी. सानवी microseconds. Okay, we have one student who is connected from OnePlus device. Yes, please unmute. Please unmute to speak. Okay, 0.1 seconds.
ऑलराइट, सो आई टेल यू द एग्जैक्ट फिगर. हमारा जो ब्रेन है वो किसी भी ऑर्गन तक जो सिग्नल्स को सेंड करता है उसकी जो स्पीड है दैट इज 268 माइल्स पर आवर. अब हम इसको रिलेट करते हैं गाड़ी की स्पीड के साथ, 268 माइल्स पर आवर. अब कौन कौन फॉर्मूला 1 रेसिंग देखता है? फॉर्मूला 1 रेसिंग के बारे में किस किस को पता है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो अबाउट दैट? ये उसको अज्यूम कर सकते हो कि एआई हमारी लाइफ्स को आसान बना सकता है, काम को क्विकली कर सकता है, बट हमारे ब्रेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट, इट कैन नॉट बी इंटेलिजेंट देन आवर ह्यूमन ब्रेन. ओके, यस मैम फॉर्मूला 1 रेस एक रेस होती है जिसमें एक कुछ सुपर कार्स होती है जिसमें ओनली वन ड्राइवर बैठते हैं. वन ड्राइवर बैठते हैं, स्पीडी कार्स होती है. मैम उसका इंजन पीछे होता है. इंजन पीछे होता है, राइट. ओके, सो फॉर्मूला 1 इज अ काइंड ऑफ रेस. एक रेस होती है. हमारा जो ब्रेन है, यस यू वांट टू से समथिंग नाउ, आई थिंक योर वीडियो इज प्रॉपर. ऑलराइट, सो जो हमारा ब्रेन है दैट इज इवन फास्टर देन दैट फॉर्मूला 1 कार. ये वो प्रोसेस करता है थाउजेंड्स ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड. 1000 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन एक सेकेंड में प्रोसेस कर सकता है. एंड डू यू नो व्हाट इज द राइट एज जहाँ पे आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना, ब्रेन को किस तरह से आप बेटर कर सकते हो? व्हाट इज द राइट एज? एंड दिस इज स्पेशली फॉर द पेरेंट्स हु आर अटेंडिंग दिस सेशन टुडे. जो राइट एज होती है दैट इज व्हेन यू आर अ चाइल्ड. जब आप एक एज में होते हो, यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ अ चाइल्ड, बिकॉज द चाइल्ड्स ब्रेन इज 2 times मोर एक्टिव देन द एडल्ट्स ब्रेन. जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो जो हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड होती है, बच्चों की जो ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड है दैट इज 2 times फास्टर देन दैट. अब देखो, जो बच्चों का ब्रेन है मतलब हमसे 2 गुना ज्यादा एक्टिव है. लेट्स सपोज देयर इज पर्सन ए हु इज 26 year old. यहाँ पे एक बच्चा है बी हु इज जस्ट 13 years old, राइट? सो ए का जो ब्रेन का प्रोसेसिंग का स्पीड है, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, ब्रेन कितना एक्टिव है, उसका 2 times जो है उस बच्चे का ब्रेन जो है दैट इज मोर एक्टिव. बच्चे जो किड्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन द लर्निंग मोड. वो लर्निंग मोड में होते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, उनकी इमेजिनेशन ज़्यादा होती है और वो चीज़ों को याद भी जल्दी रख सकते हैं. बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, इफ़ यू डोंट गाइड देम प्रॉपरली. अगर उन्हें एक राइट एज के ऊपर जाके गाइडेंस नहीं मिलती है प्रॉपर, सो ये जो उनकी पावर है एज के साथ कम होती जाएगी. So that is why the exposure to memory techniques is very important. या 9 years, 13 years तक की एज जब आप चाइल्डहुड में होते हो, अपने स्कूलिंग वाला फेज होता है जो आपका म्यांश, उसमें द पावर ऑफ द चाइल्ड्स ब्रेन इज 2 times. जब हम 18, 20, 25, तो विथ एज वो जो पावर है डे बाई डे डिक्रीज होती जाती है. ओके, नाउ सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक राइट एज के ऊपर बच्चों को एक्सपोजर होना चाहिए अबाउट द मेमोरी टेक्निक्स, जो कि आपके चाइल्ड की एकेडमिक जर्नी को बिल्कुल चेंज कर सकती हैं. सो दिस वॉज जस्ट द ओवरव्यू सेशन. आज का ये ओवरव्यू सेशन था. सो सिंस I am now taking out a moment to introduce myself because I'll be your trainer throughout the next 40 minutes, 50 minutes that we have. I am Jasmine. I am the co-founder of StudyKosh and I am from Indian Institute of Management, and over 13 plus years I have trained approximately 5,000 plus students, not only in India but overseas as well. So the approach is basically student centric. The approach we use at StudyKosh to train you students is student centric. Successfully done so many workshops pan India, and we regularly bring out some result driven programs जिससे कि students को actual में it is going to benefit the students. Apart from this, India के top rated schools, universities के साथ we have successfully collaborated in skill building camps as well as Olympiad sessions, university departments, coaching institutions. These are all part of this. Right from Himachal to the south of our country as well as from east to west, we have the students in our different training programs from Pan India. Now, we believe at StudyKosh that you should study smarter, remember faster and ultimately उससे होगा क्या, आपके scores खुद ही improve हो जाएंगे.
नाउ यू नीड नॉट टू हैव स्लीपलेस नाइट्स कि आपको एग्जाम से पहले सारी रात जाग के पढ़ना है. दिस इज द सिनेरियो टुडे जो बच्चे फेस कर रहे हैं. एंजाइटी होती है एग्जाम से पहले. सो देयरफॉर थ्रू द साइंटिफिक लर्निंग टेक्निक्स आप अपने ब्रेन को, आप अपनी मेमोरी को रीवायर कर सकते हो सो दैट यू मेक योर लर्निंग फास्टर, स्मूदर एंड डीपर. राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैलेंज. 1 by 1 challenges हम करेंगे. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट बिगनिंग विद द फर्स्ट चैलेंज दैट इज वर्ड्स चैलेंज. वर्ड्स चैलेंज हमारा फर्स्ट चैलेंज रहेगा दैट वी आर गोइंग टू डू इन द सेशन. और पैरेलली आई विल बी टेलिंग यू उसको किस तरह से, व्हाट इज द स्मार्ट वे. ऑन योर स्क्रीन आई एम गोइंग टू शो यू 10 वर्ड्स. आपको 10 वर्ड्स दिखाई देंगे स्क्रीन के ऊपर. आई विल स्पीक दोज 10 वर्ड्स. आपको 10 सेकेंड्स में याद करना है उन वर्ड्स को. लेट्स डू दैट. एप्पल, ट्रेन, पेंसिल, क्लॉक, टाइगर, river, balloon, fan and pizza. Now any student who can say the same sequence of words. Any student in the class जो इन words के sequence को same बोल सकता है. Yes please. Unmute first. Yes. Pizza, balloon, pen. Okay. Yes. Tiger. Okay. Good try. Okay, good try. Right. अब यहाँ पे पेन तो नहीं था उन वर्ड्स में, so therefore 3 words you could recall. Okay. जो भी स्टूडेंट है, आई वॉन्ट आप बोल के आंसर करो. दिस वुड बी यू नो वेरी इंटरेस्टिंग सेशन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज मेरीन. यस मेरीन. एप्पल, ट्रेन, पेंसिल, पिज्जा. ओके. टाइगर. ओके. मैम बस इतना याद. ओके, 4 words, right? नेक्स्ट वी हैव इज जनाशी. यस प्लीज. एप्पल. यस. ट्रेन. ओके. पेंसिल. Okay. क्लॉक. टाइगर. रिवर. बलून. पिज्जा. पिज्जा. ओके, एक स्किप कर दिया आपने, बट गुड ट्राई. ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव इज म्यांश. यस म्यांश. मैम एप्पल, ट्रेन, पेंसिल, क्लॉक, टाइगर, रिवर, बलून, फैन, पिज्जा. वेरी गुड, वेरी गुड. 10 out of 10. स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया था म्यांश? नो मैम. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज पूजा. यस पूजा. पिज्जा, बलून, टाइगर, एप्पल एंड ट्रेन. एंड ट्रेन. 5 words याद हुए आपको. ओके, गुड. नेक्स्ट वी हैव इज तन्मय. यस तन्मय. मैम एप्पल, पेंसिल, बलून, टाइगर, ट्रेन, रिवर, क्लॉक, फैन, पिज्जा. ओके, गुड ट्राई तन्मय. Okay, so Sanvi is saying apple, train, pencil, watch, tiger, balloon, river. Okay, good try. Now आप सबने कैसे इन वर्ड्स को याद किया? I want to know from you only. तन्मय, आपने ये वर्ड्स की जो लिस्ट है उसको कैसे याद किया? Yes तन्मय, प्लीज अनम्यूट. आपने ये जो वर्ड्स की लिस्ट बोल के बताई उसको आपने कैसे याद किया? मैम एक बार देखा और फिर याद हो गई. एक बार देखा और फिर याद हो गई. गुड. ओके, सो वी हैव पूजा. पूजा, आपने भी 2-3 वर्ड्स को सही बोला था. हाउ डिड यू रिकॉल? आपने कैसे याद किया? मैम एक बार देखा तो याद हो गया. अच्छा, तो पूरी लिस्ट क्यों नहीं याद हुई फिर? मैम थोड़ा याद हो गया, थोड़ा रह गया. राइट, थोड़ा याद हो गया, थोड़ा सा रह गया. ओके, अब इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं. राइट, आपके पास कौन से वर्ड्स थे? एप्पल, ट्रेन, पेंसिल, क्लॉक, टाइगर, रिवर, बलून, फैन एंड पिज्जा. तन्मय, यू वांट टू से समथिंग? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू. कुछ वर्ड्स याद रहे, कुछ चैट बॉक्स से देखे. ओके तन्मय, वेरी गुड. आपने सच बोला है. यू हैव गिवन एन ऑनेस्ट आंसर. कुछ वर्ड्स याद थे, कुछ चैट बॉक्स से देख लिए. नो प्रॉब्लम. अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अप्रोच बताती हूँ. उस अप्रोच के साथ आप भूलोगे ही नहीं. ना आपको चैट बॉक्स देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें ये वाला जो वर्ड्स का स्लाइड है, ये पेज है, ना ही हमें ये देखने की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, लेट्स डू.
The technique that I am going to discuss with you, this is basically called the story linking या फिर association chain technique. Story linking क्या है? जो भी मेरे पास words मैंने देखे, create a story in the mind. कैसे हम story को create कर सकते हैं? Let me help you with that. एक लड़का था, वो एप्पल खा रहा था. एक लड़का एप्पल खाते खाते ट्रेन में चढ़ा. ट्रेन में जब वो चढ़ गया, उसके पास काफ़ी टाइम था. उसने अपनी पेंसिल निकाली और उसने ड्रॉ करना शुरू किया. क्या ड्रॉ किया? क्लॉक को ड्रॉ किया उसने. सी, एक लड़का था, एप्पल खाते खाते वो ट्रेन में चढ़ा. फर्स्ट वर्ड हमारा एप्पल, सेकेंड वर्ड क्या है? जस्ट इमेजिन दिस स्टोरी इन योर माइंड. लिसन टू मी और इस स्टोरी को दिमाग में इमेजिन करो. एक लड़का एप्पल खाते खाते, मैम आपने इतना टाइम ही नहीं दिया था. ओके, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बेसिकली ध्रुव. दैट इज वाई जनरली जब हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस? आप वर्ड्स को देखते देखते ही स्टोरी अपने माइंड में विद इन 10 to 15 सेकेंड्स बना लेते हो. इट्स नॉट लाइक कि आपको 5 मिनट मिलेंगे स्टोरी फॉर्मेशन के लिए. जैसे जैसे आप हम इस टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे यू नो योर आईज स्क्रॉल वर्ड टू वर्ड, आपकी आईज वर्ड टू वर्ड आप जाएंगी, साथ के साथ स्टोरी ब्रेन में बनती है. इतनी क्विक मीन्स रिटेंशन पार होती है ब्रेन की. ओके, सो अ बॉय, एक लड़का एप्पल खा रहा था. उसने एप्पल खाते खाते वो ट्रेन में चढ़ गया. उसके बाद उसने अपनी पेंसिल निकाली और उसने ड्राइंग करनी शुरू की. और उसने क्या ड्रॉ किया? क्लॉक. थोड़ी देर बाद सडनली एक टाइगर ने कहाँ से जंप किया? रिवर से बाहर जंप किया. एप्पल, ट्रेन, पेंसिल, क्लॉक, टाइगर, रिवर. ओके, म्यांश, पिज्जा इज रिटन. सी, यहाँ पे देखो पिज्जा लिखा हुआ है. ओके, अब यहाँ पर देखो, इतनी स्टोरी हमने फॉर्म की. जैसे ही वो टाइगर जो है ट्रेन में चढ़ा तो क्या हुआ? उसके साथ एक बलून बंधा हुआ था. उस टाइगर के साथ बलून बंधा हुआ था और ट्रेन में एक फैन बहुत तेजी से चल रहा था, जिसके कारण जो पिज्जा का स्लाइस है वो ब्लो हो गया, वो उड़ गया. व्हाट इज आवर स्टोरी? जस्ट सी नाउ. एक लड़का एप्पल खाते खाते ट्रेन में चढ़ा. ट्रेन में चढ़ के उसने पेंसिल उठाई और क्लॉक को ड्रॉ करना शुरू कर दिया. सडनली टाइगर ने रिवर से बाहर जंप किया और उसके साथ एक बैलून बंधा हुआ था. ट्रेन में एक फैन चल रहा था, जिसके कारण जो पिज्जा है वो ब्लो हो गया. क्या वर्ड्स हैं हमारे? एप्पल, ट्रेन, पेंसिल, क्लॉक, टाइगर, रिवर, बलून, फैन, पिज्जा. ना तो हम यहाँ पे हमने सीक्वेंस को ऊपर नीचे किया, हमारा सीक्वेंस भी बिल्कुल सही है. हमने सारे के सारे वर्ड्स जो हैं एग्जैक्ट बोले, विदाउट स्किपिंग एनी वर्ड, विदाउट एडिंग अ न्यू वर्ड. जैसे एक स्टूडेंट ने बीच में बताया था कि पेन भी था बीच में. पेन वॉज नॉट देयर, पेंसिल वॉज देयर, राइट. ना तो हमने कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया, ना हमने एग्जिस्टिंग वर्ड को किसी को रिमूव किया. व्हाट वी डिड, सीक्वेंस ऑल्सो करेक्ट, एवरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड. और सी, ये वाली जो स्टोरी दिमाग में लाके आपकी कभी भी किसी भी सिचुएशन में, अगर मैं आपसे 1 साल बाद भी पूछूंगी कि जो हमारा डेमो सेशन हुआ था, जो हमारा वेबिनार हुआ था, उसमें मैंने आपको 10 वर्ड्स दिए थे, आप मुझे 1 साल बाद भी वो 10 वर्ड्स एज इट इज बता पाओगे. क्यों बता पाओगे? द रीजन इज दैट वी हैव क्रिएटेड अ विजुअल फॉर दैट. हमने क्या किया? उस चीज को विजुअलाइज कर दिया. नाउ व्हाई दिस टेक्निक वर्क्स? हमारा जो ब्रेन है वो स्टोरीज को, विजुअल्स को, इमोशंस को, आई विल राइट फॉर यू अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, विजुअल्स को, इमोशंस को और स्टोरीज को ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में, ज़्यादा आसानी से स्टोर कर पाता है. एंड दिस इज द बेस ऑफ मेमोरी साइंस. ये जो मेमोरी साइंस होता है, दिस इज द बेस फॉर दैट. Easy to understand? I am just waiting for your words. All the students present in the class, was it easy or difficult? अभी ऐसी बहुत सारी examples अभी coming half an hour में हम करेंगे. Myansh, coming to that. Easy, right? Okay, Janashi also found it easy. So be interactive. Whatever comes in your mind, simply be interactive in this session. Because अभी हम आज ही सब कुछ नहीं सीखेंगे. We have, you know, the entire weekend, 1 month का ये पूरा curriculum, पूरा program है, जिसमें 1 by 1 हम different चीज़ों को सीखेंगे. All right? Now, the second technique that I am going to discuss with you today, that is basically mnemonics and acronyms. What are mnemonics? What are acronyms?
ये एक पावरफुल टूल है जिसको हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स एंड एक्रोनिम्स, जो कि हमारी मेमोरी को हेल्प करता है कि हम सिंपल पैटर्न्स बनाएं। अभी तो हमने स्टोरी फॉर्मेशन की थी, अभी हम क्या करेंगे, सिंपल पैटर्न्स की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको याद रख सकते हैं, राइट। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ ज्योग्राफी। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ आई एम टेकिंग वेरी सिंपल नेम्स ऑफ 5 रिवर्स। मैं 5 रिवर्स के नेम्स आई एम गोइंग टू आई विल नॉट शो यू नाउ, आई एम गोइंग टू स्पीक द नेम्स और आपको उसी सीक्वेंस में वो रिवर्स के नाम बताने हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा। एनी स्टूडेंट हु कैन टेल, टेक 10 seconds ऑफ टाइम। उसके बाद यू योरसेल्फ से कि कौन आंसर करना चाहता है। यस मेरीन। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, हाँ, नर्मदा, हाँ, लास्ट वन, याद में, लास्ट में एक रह गई है मेरीन। ओके, गुड ट्राई, एनी हाउ गुड ट्राई। नेक्स्ट वी हैव इज पूजा। यस पूजा। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। What was the fourth one you said? गोदावरी। Godavari. Okay. Good try, Pooja. Next we have Myansh. Myansh, yes please. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा। Narmada Krishna. Very good. Next we have is Tanmay. Yes Tanmay. अब तो सभी बता देंगे। Yes. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। Godavari Krishna. Okay. Good try. Next we have Janashi. Yes please. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा। Yes. Sanvi has put the message in the chat box also. Okay. Next we have is Navya. Yes please. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा। नर्मदा कृष्णा। यस, सानवी ने ऑलरेडी आपको चैट बॉक्स में हेल्प कर दी है सबको। सो सी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा, ये तो था सिंपल नेम्स ऑफ द रिवर्स। तो आप उसको इजीली जो है यू कुड स्पीक। व्हाट इफ अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो या रिवर्स की लिस्ट और ज़्यादा लंबी हो या फिर देयर आर रिवर्स जो आप जिसे अच्छे से नहीं जानते हो, सो इन दैट केस आप किस तरह की टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। नाउ सी, गंगा जी, यमुना वाई, ब्रह्मपुत्र बी, नर्मदा एन, कृष्णा के। इसके लिए हम एक निमोनिक सेंटेंस बना लेते हैं। ग्रेट यंग बॉयज नेवर नॉक। ग्रेट यंग बॉयज नेवर नॉक। व्हाट इज ग्रेट? जी, जी फॉर गंगा। What is young? Y. That is Yamuna. What is boys? B. B is Brahmaputra. Never में N. N क्या है? नर्मदा. And knock. Knock means जो हम डोर को नॉक करते हैं। knock में जो K है that is कृष्णा। So मैंने क्या किया, हमने एक निमोनिक सेंटेंस क्रिएट कर लिया for the 5 rivers that I wanted to store in my mind, right? So this was a simple example. ओके, अब मैं एक साइंस का क्वेश्चन पूछती हूँ आप सबसे। एनी स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास कैन टेल मी द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आप या तो अपने आने वाली क्लासेस में या फिर आप अभी अपनी क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है आपने स्टडी किया होगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। कैन एनी स्टूडेंट आंसर विदाउट चेकिंग एट गूगल, विदाउट ओपनिंग बुक? कैन यू टेल मी द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, उसका एक सीक्वेंस होता है, वो क्या सीक्वेंस है? ओके, आई टेल यू। सबसे पहले क्या आता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आई एम स्टार्टिंग द टाइमर। आई एम गिविंग यू 20 seconds। आपको याद करके सेम सीक्वेंस बोलना है। डोंट टेक द स्क्रीनशॉट, बी ऑनेस्ट। आज के सेशन में आई एक्सपेक्ट ऑनेस्टी फ्रॉम यू। 7 seconds to go. Done. Can any student tell me what is the series that I have shown you? Can any student speak? Any student in the class? Yes, Pooja, you want to say? Yes. Pooja, you want to answer? तो पहले unmute करो. Yes. Speak now.
Calcium. Okay. Calcium metal. Okay. Calcium metal. Janashi, do you want to try? Potassium. Hmm. Sodium. Calcium. Magnesium. Aluminium. Yes. Calcium. Calcium already done. Zinc. Zinc. Ma'am, that's all. That's all. Good try. Very good try. I really appreciate. Next we have is Navya. Yes, Navya? Ma'am, sodium. हाँ. Aluminium. Calcium. Potassium. Zinc. Aluminium. एल्यूमिनियम. ओके. शफलिंग थी थोड़ी सी, बट येस आपने 4-5 जो नेम्स हैं सही बोले हैं. ऑल राइट. नेक्स्ट वी हैव इज यस, प्लीज अनम्यूट एंड प्लीज टेल मी योर नेम, क्योंकि आपने फोन से कनेक्ट किया है, आपका नाम नहीं पता मुझे. Ira. My name is Ira Sheikh. Okay, Ira. Yes, Ira. Please answer. Copper, metal, silver, Hydrogen. Hydronic, क्या? Hydrogen. Hydrogen. Metal, iron. Okay. Metal. Good try. Good try. Okay, Marine, you want to try? Potassium, sodium, calcium, lead, gold, copper and silver. Okay, 7 आपने recall किए. Very good. Okay, Myansh, do you want to try? Potassium, sodium. Yes. बोलो कौन से मेटल्स हमने नाम लिए? Potassium, sodium, calcium, magnesium, zinc. Okay, 5. Yes, ma'am. Very good. Good try. Okay, now I want to ask you students कि आपने ये जो नाम लिए हैं, just say yes or no, जो मैं आपसे अब पूछने वाली हूँ. आप सब ने क्या किया, मैंने जो आपको नाम बताए आपने फटाफट से उन नामों को, जैसे आपके सामने ये लिस्ट थी, तो जिसको जितना टाइम मिला सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इस तरह से दिमाग में याद किया. हाउ मेनी अग्री विद? कौन कौन मेरे साथ अग्री करता है? ओके, पूजा. यस प्लीज. उसको आवाज नहीं जा रही है. यू कैन इवन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स में भी येस नो बोल सकते हो. हाउ मेनी अग्री के ये जब आपको स्लाइड मैंने दिखाई तो आपको जो जो नाम दिखे आपने फटाफट से दिमाग में याद करना शुरू कर दिया. हाउ मेनी अग्री विद मी? हाउ मेनी स्टूडेंट्स अग्री के हाँ हमने इसी तरह से याद किया था? यस प्लीज. यस मैम, मैंने फटाफट याद की. फटाफट से याद किया. राइट. सानवी, प्रदीप, पूजा, मेरीन. ओके, एवरी स्टूडेंट इज आंसरिंग. राइट. हम जनरली ऐसे ही याद करते हैं, बट वॉट इफ आई टेल यू कि आपके पास एक स्मार्ट वे है इसको याद रखने का. वो स्मार्ट वे क्या है याद रखने का? आई टेल यू. सी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा. आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय. मुझे जेब्रा बुलाना बंद करो, मुझे अच्छा लगता है वो जब स्मार्ट गाय कहती है मुझे. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा. आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय. नाउ सी द डिफरेंस. प्लीज potassium, stop, sodium, calling, calcium, me, magnesium, aluminium, zebra, zinc, iron, like, lead, her, hydrogen, calling, copper, smart, s, silver, guy, g, gold. अब ये लाइन देखो, इसका जो जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है बेसिकली? This is your reactivity series. Please stop calling me a zebra. I like her calling smart guy. दोनों में से कौन सा वे easy है? You tell me now. Which way is easy? Rather than आप अपनी बुक का, ये तो स्टूडेंट्स आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल्स. थ्रू आउट द कोर्स हम मैथ्स भी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, और भी टेक्निक्स आई एम गोइंग टू टीच यू. ये बेसिक टेक्निक्स हैं. सी, अगर मान लो आपकी बुक में ये वाला पेज ओपन होता है तो हम अभी तक क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू?
हम इसको याद करना शुरू करते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इस तरह से हम उसको बार बार क्रैम करते हैं। आगे से कभी भी आप क्रैम नहीं करोगे। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ निमोनिक फॉर दैट। इसका जो भी फर्स्ट अल्फाबेट है दैट इज द मेटल ऑफ योर रिएक्टिविटी सीरीज। आपकी जो भी रिएक्टिविटी सीरीज है पूरी, सीक्वेंस करेक्ट, नेम्स करेक्ट, ना मैंने कोई एडिशन में मतलब कोई एक्स्ट्रा नाम इसमें ना तो ऐड किया, ना ही मेरा कोई भी मेटल का नेम स्किप हुआ। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? यस मियांश, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। यही है, ये देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय। मुझे ज़ेब्रा बुलाना बंद करो, मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे स्मार्ट गाय बोलती है। सो ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। ओके, सो इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? यस और नो? इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? ओके नव्या, यस, राइट, गुड। अब यहाँ पर देखो, अब हम एक और डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ओके, अमायरा गॉट योर रिप्लाई ऑल्सो। मैम मैं इतना ही बना पाया, ओके राइट। मियांश, गुड ट्राई। ये जब हम रिपीटेडली इसको प्रैक्टिस करेंगे टेक्निक्स को, आज तो मैं सिर्फ आपको 2 या 3 टेक्निक्स बता पाऊंगी बिकॉज वी जस्ट हैव 1 आवर सेशन टुडे, ओके। तो जब हम ये डिटेल में सब चीज़ें करेंगे, देयर यू विल कम टू नो हमारा ब्रेन क्या है, हमारी पावर एक्चुअल में क्या है। एंड यू नो स्टूडेंट्स, ये जो सारी टेक्निक्स हैं, आई एम टेलिंग यू द प्रूवन टेक्निक्स। मी एंड माई टीम वर्क विद द न्यूरो सर्जन्स, जो ब्रेन के डॉक्टर्स और अच्छे स्पेशलिस्ट होते हैं। आवर टीम एट स्टडी कोच हैज़ वर्कड विद देम। ये जो आपको चीज़ें हैं ये थ्योरी नहीं है, आपको ये मैं रिजल्ट्स शेयर कर रही हूँ। दैट इज़ वाई आपको ये इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं और आसान भी लग रहे हैं। ओके, अब हम मैथ्स का एक क्वेश्चन लेते हैं। ऑल द मैथ स्टूडेंट्स, आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। अब मैं आपको एक डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट जगह के ऊपर, चाहे वो कोई इंटरव्यू का रिटन राउंड है, कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है, स्कूल का कोई कंपटीशन है, मैथ्स के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है। Once upon a time in a quiet village there lived an old man। एक समय की बात है, एक गाँव था। गांव में एक ओल्ड मैन रहता था जिसके पास मैजिकल मैंगो गार्डन था। उसने हर रो में 6 ट्रीज लगा रखे थे मैंगो के, और उसके पास 5 रोज थी मैंगो के ट्रीज की। अब ट्विस्ट क्या है? ईच ट्री इन द गार्डन, हर ट्री से जो उसने अपने गार्डन में लगाए थे उसको 4 मैंगोज मिलते थे रोज। अब जब उसका ग्रैंडसन, उसका नाम था रोहन, वो क्या उस गार्डन में जाता और मैंगोज को अपनी बास्केट में कलेक्ट करके लाता। सो उस ओल्ड मैन ने रोहन को बोला कि रोहन, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैंगोज डू यू कलेक्ट फ्रॉम द गार्डन इन 1 डे? एक दिन में तुम गार्डन से कितने मैंगोज कलेक्ट करते हो? नाउ लेट अस सी आवर टॉपर्स ऑफ टुडे। आज के डेमो सेशन के देखेंगे टॉपर्स कौन है। ओके, जानाशी इज सेइंग 120, फर्स्ट टॉपर इज जानाशी, सेकंड यस पूजा, प्लीज अनम्यूट। मैम 120। 120, थर्ड टॉपर हमारे पास है मनीष, वेरी गुड। अब सबको आंसर पता चल गया 120। अब ये 120 आंसर कैसे है? ओके, एवरीबडी हैज आंसर्ड, वेरी गुड। अब इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर? 120। अब ये आंसर कैसे है? अब देखो, सबसे पहले 6 ट्रीज हैं, 5 रोज हैं। 6 ट्रीज इन 1 रो, 2 3 4 5, टोटल कितने ट्रीज हो गए? 30। एक ट्री पे कितने मैंगोज लगते हैं? 4। तो 30 ट्रीज पे कितने लगेंगे? 30 × 4। अगर आप अपने अभी के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप अपने मेमोरी के पावर से आपको सॉल्व करना है, आप कैसे करोगे? इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इन लेयर्स। जितनी रोज हैं उसमें जितने पेड़ लगते हैं, एक पेड़ पे जितने फ्रूट लगते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। नाउ लेट्स गो बैक। अब देखो यहाँ पे कितने यहाँ पे रोज थे, ट्रीज की रोज कितनी थी? 6, और एक में कितने लगते थे? जो मैंगो के ट्रीज कितने थे? 6 5 30 आ गया हमारे पास, और एक ट्री से कितने मैंगोज मिलते थे? 4। 30 × 4 इज 120। दिस इज बेसिकली कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन इन लेयर्स, लेयर मल्टीप्लीकेशन। दिस इज अगेन अ मेमोरी टेक्निक। अगर आपको माइंड में आप बना लोगे, ओके, ड्रॉ 6 लाइन्स, 6 लाइन्स सीधा सीधा बन गई, राइट? 450 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 90। ओके, इरेज कर दिया आंसर।
अब देखो, जब आपको बोला गया कि मैंगो ट्रीज की इतनी रोज हैं और उस पर इतने पेड़ लगे हैं, दिमाग में क्विकली वो विजुअल बन जाना चाहिए, तभी आप इसको मैक्सिमम जो है 5 सेकेंड्स में यू कैन इजीली आंसर, राइट? सो दिस इज अगेन अ वेरी वंडरफुल थिंग। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। वी ऑल स्टडी अ टर्म इन आर मैथ्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट पाई। हम मैथ्स में पाई को स्टडी करते हैं और जनरली हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 तक लेते हैं, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी लेंदी वैल्यू होती है, 3.141592। ओके, अब यहाँ पर देखो इस वैल्यू को, अब इस तरह से डेसिमल नंबर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, साइंस में भी होते हैं, फिजिक्स में, मैथ्स में भी होते हैं, राइट? सो आप इसे कैसे याद कर सकते हो, इसके लिए आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग टेक्निक। व्हाट इज दैट? 0 से लेके 9 तक जो भी डिजिट्स हैं उसको किसी इमेज के साथ या किसी वर्ड के साथ रिलेट करना है। 0 को मैंने एग के साथ रिलेट कर दिया, शेप दोनों की सेम है। 1 को मैंने किससे रिलेट कर दिया, कैंडल के साथ। 2 को किससे रिलेट कर दिया, 2 हम ऐसे लिखते हैं तो स्वैन बना दिया। 3 हम इस तरह से लिखते हैं, मैंने हार्ट के साथ रिलेट कर दिया। 4 को चेयर के साथ रिलेट कर दिया। 5 को स्टारफिश के साथ कर दिया, क्योंकि स्टारफिश के कितने ये जो बाहर ट्रायंगल्स होते हैं, 5 होते हैं। उसके बाद 6 है तो 6 को मैंने एलिफेंट के साथ रिलेट कर दिया। 7 कलर होते हैं रेनबो के, उसको रेनबो से रिलेट कर दिया। स्नोमैन की शेप का हमारे पास क्या है, 8 है, और 9 क्या है, इन द फॉर्म ऑफ बलून, रिलेट कर दिया। अब मैंने क्या डेसिमल को याद करना है, उसके रिलेटेड आई विल क्रिएट अ स्टोरी। हाउ? What is the value of pi? That is 3.141592। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हर एक अल्फाबेट को, हाउ इज एलिफेंट 6? आई टेल यू। अब ये एलिफेंट देखो, जो एलिफेंट की जो दैट नोज ऑफ दैट एलिफेंट होता है, जब मुड़ा हुआ होता है वो ऐसे मुड़ा हुआ होता है। अगर एलिफेंट का आप वो नोज देखो जो उसके टीथ के साथ होता है ना, वो इस तरह से होती है। दैट इज वाई मैंने 6 को एलिफेंट से रिलेट कर दिया। ये कोई रूल नहीं है आपको कि आपको इसी से रिलेट करना है, यू कैन रिलेट इट टू एनीथिंग जो आपको लगता है 6 की तरह। ओके, नाउ सी व्हाट इज द 3 क्या है, हार्ट है। 1 को कैंडल, 4 को चेयर, उसके बाद 1 अगेन कैंडल, 5 इज स्टारफिश, 9 इज बलून एंड 2 इज स्वैन। अब इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, स्टोरी क्रिएट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इसको देखते देखते जब हम इस कोर्स में ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी कि आप जैसे ही इन वर्ड्स को देखोगे यू विल ईजिली बी एबल टू क्रिएट द स्टोरी, वर्ड को वर्ड से रीड करते। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, हार्ट, कैंडल, चेयर, इतना बोलने पे ही आपका माइंड इतना फास्ट प्रोग्राम करेगा कि आप उस स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो। हाउ? लेट्स सी। वंस अपॉन अ टाइम एक हार्ट शेप की कैंडल पड़ी हुई थी एक रूम में, कहाँ पे, चेयर के ऊपर। सो वंस अपॉन अ टाइम हार्ट शेप कैंडल, क्या नंबर आ गया, 3। कैंडल क्या नंबर आ गया, 1। किसके ऊपर पड़ी हुई थी वो, चेयर के ऊपर, तो क्या नंबर आ गया, 4। सडनली क्या हुआ, एक और अनदर कैंडल कौन लेके आई, स्टारफिश। मतलब पहले एक और कैंडल कौन लेके आई, स्टारफिश, मतलब 5, वो भी उस रूम में आ गई कैंडल उठा के। फिर क्या हुआ, एक बैलून पॉप हुआ। नाउ बैलून पॉप हुआ विच मीन्स 9, राइट? बैलून पॉप हुआ और स्वैन जो है अपनी फ्रेंड स्टारफिश को मिलने आई। 2। व्हाट इज आवर आंसर? सी 3.141592। हाउ वी गॉट द आंसर? नाउ सी हियर, 3.141592। सी आपको चाहे अब यहाँ पे इतने जो डिजिट्स हैं, आई एम राइटिंग हियर 3.141592 के आगे अगर मान लो 10 डिजिट्स भी और होंगे, आप उस सीक्वेंस को कभी भी आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी उसमें गलती नहीं होगी। अभी तो हमने क्या है, इस डेसिमल की एक एग्जाम्पल मैंने कंसिडर की है। जब हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो हम 20 डेसिमल प्लेसेस तक भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो क्या हुआ, एक बार एक डार्क रूम था, अंधेरे वाला कमरा था, उसके ऊपर हार्ट शेप की जो कैंडल है वो चेयर के ऊपर पड़ी थी। सो वी हैव गॉट 314। सडनली एक दूसरी कैंडल दिखी, किसके हाथ में, स्टारफिश के हाथ में। 1 and 5 जो उस रूम में आ गई। एक बलून पॉप हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो बलून पॉप हुआ।
9 और वो बैलून पॉप हुआ तो स्वैन अपनी फ्रेंड स्टारफिश को मिलने आ गई. सो स्वैन इज 2 विच इज 3.141592, राइट. सो ये तो थी एग्जाम्पल ऑफ अ डेसिमल. अब नाउ लेट्स क्विकली सी 2-3 मोर एग्जाम्पल्स. अब मान लो इकोनॉमिक्स की अगर एग्जाम्पल देखें, दिस इज समथिंग कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल. इकोनॉमिक्स में हमारे पास टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं मे बी वो अभी अनफेमिलियर हैं. मान लो आप इस टॉपिक के बारे में जानते भी नहीं हो, लेकिन स्टिल आप इस टॉपिक को हमेशा याद रख सकते हो. सो देयरफॉर मेमोरी साइंस टेक्निक्स की हेल्प से स्टूडेंट्स व्हाट हैपन्स, आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, मान लो अभी आप क्लास 5 में हो, 6 में हो या 7 में हो या वॉट एवर, यू डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक. लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ आपको ये टॉपिक की ये जो 5 तरह की टाइप्स होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको याद करनी है, आप किसी भी एज ग्रुप के स्टूडेंट हो आप याद कर सकते हो. कैसे याद कर सकते हो? आई जस्ट टेल यू वन थिंग. हम क्या करेंगे, इसका भी कोई ना कोई क्या बना लेंगे, वी विल क्रिएट अ निमोनिक, राइट. अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे इसका कोई इंग्लिश नेम ले लेते हैं. फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, पी हो गया. दूसरा क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक, राइट. परफेक्टली इन इलास्टिक, तो मैंने इसका बना लिया PEPI, राइट. उसके बाद क्या आता है, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक, तो मैंने इसको क्या बना दिया, RELI. दिस इज नो डाउट डिफिकल्ट एग्जाम्पल. अगर कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूज मत होना, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग. RELI. उसके बाद क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिक, UE. इसको ऐसे एजम्पशन बना लो इसकी. इससे व्हाट वी कैन मेक इज दैट पैपी रिलायबल अंकल एड. पैपी रिलायबल अंकल एड. एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ भी बना सकते हो जो दिमाग में आया. आई हैव पुट द सॉल्यूशन. सो इस तरह से जब भी आएगा पैपी, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक. फिर रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये आ गया RELI. उसके बाद क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज अंकल एड. इस तरह से यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ निमोनिक फॉर दैट. अब हम हिस्ट्री आप सभी स्टडी करते हो या कर चुके हो. कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ मुगल एम्परर्स? मुगल एम्परर्स के नाम आप एक ऑर्डर में बता सकते हो मुझे? यस जानशी, प्लीज अनम्यूट फर्स्ट. हाँ. फर्स्ट इज बाबर, हुमायूं. नहीं, सीक्वेंस में आप हुमायूं ही नेम यूज करो. आगे. देन अकबर. आफ्टर अकबर इट विल बी जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. राइट. तो जानशी कैन यू जस्ट हेल्प मी कि आपने ये जो सीक्वेंस याद किया, हाउ डिड यू डू, व्हाट वाज, क्या कैसे याद किया था जब याद किया था? Like ma'am, I studied the chapter so like that I remember it. So आपने उसको क्या किया, बार बार बोलते गए तब आपके माइंड में वो चीज, आपने एक तरह से, हमने क्या किया, इसको क्रैम किया, राइट. नाउ सी मुगल एम्परर्स जो हैं व्हाट, अब किस तरह से आप उसको पहले देखते हैं. मुगल एम्परर्स कौन कौन थे? सिर्फ एक ही स्टूडेंट को क्लास में पता था, बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब. अब बात आती है कि हम इन मुगल एम्परर्स को कैसे याद करेंगे. जनरली हम क्या करते थे और आप लोग क्या करते हो, बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर. फिर दोबारा बोल के देखोगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब. बार बार उसको रटने की, उसको याद करने की आप कोशिश करोगे. बट हाउ कैन यू मेक इट इवन इंटरेस्टिंग? लेट्स क्रिएट अ निमोनिक. हम एक तरह से इसका निमोनिक क्रिएट करते हैं. बाबर का ले लेते हैं B, हुमायूं का ले लेते हैं H, अकबर का ले लेते हैं A, जहांगीर का J, शाहजहां का S एंड औरंगजेब का A. BHA, कई बार क्या अप्रोच होती है कि मान लो इसको 2 ग्रुप बना लिए, BHA एंड JSA. पहले ग्रुप में B है, दूसरे में J है, फिर यहाँ HA है, यहाँ SA है. कई बार हम ऐसे याद कर लेते हैं, BHA JSA, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, राइट. लेकिन अगर हम इसका एक निमोनिक क्रिएट कर लें, लेट्स सपोज इसका निमोनिक हम ये बना लेते हैं, B फॉर बाबर तो हम ले लेते हैं बिग, H फॉर हुमायूं तो वी टेक हंगरी, बिग, हंगरी,
अब यहाँ पे उसके बाद क्या है, अकबर। अकबर की जगह कोई भी एनिमल का नाम ले लेते हैं, या फिर हम अगर एनिमल का नाम नहीं याद, यस लाइक विबग्योर, यस राइट आंसर, यस म्यांश। यहाँ पे अगर तो BHAJSA, कई बार आप इस तरह से, जैसे रेनबो के कलर्स क्या होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो हम ऐसे भी, आप इसको इतना अगर जिन स्टूडेंट्स के लिए इजी है याद रखना, आप ऐसे कर सकते हो BHAJSA। लेकिन अगर आपको इसका निमोनिक बनाना है, BHA, A फॉर अकबर था, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एनिमल सिंपल लिख देते हैं, बिग हंगरी एनिमल, बाबर, हुमायूं, अकबर। उसके बाद क्या था हमारे पास, BHA, फिर क्या था, JSA। यहाँ पे देखो BHA देन JSA, J से हम एक और लेट्स क्रिएट समथिंग जो इससे रिलेट कर दे, बिग हंगरी एनिमल जंप्ड, S से सो और A से एग्रेसिवली। मान लो कि बहुत बड़ा हंग्री एनिमल था, उसने एग्रेसिवली जंप किया, AGGRESIVELY, बिग हंग्री एनिमल जंप्ड सो एग्रेसिवली, BHAJHA, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सो आई टोल्ड यू 2 थिंग्स, या तो सिंपल इसी को याद कर लो या फिर क्रिएट अ निमोनिक फॉर दिस, right? Now how many students are finding it interesting? We have just 5-10 more minutes. 5-10 minutes में we are going to just end the webinar also. कितने students को ये session interesting लग रहा है, ये techniques interesting लग रही है? Yes म्यांश, आप कुछ कहना चाहते हो? Ma'am, these techniques are interesting and they are making the thing too easier to learn. Easy to learn. Enjoy कर रहे हो session को? Yes ma'am. All right, good to hear that. Okay. Next we Janashi is also there, Navya, Sanvi, right, very interesting. So ये आपको बहुत हेल्प करेंगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो, लेट्स मूव फर्दर। अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कैन यू टेल मी महात्मा गांधीज मेजर मूवमेंट्स? महात्मा गांधी ने हमारे देश में बड़ी सारी मूवमेंट्स की हैं, क्या आप मुझे कोई 5 मूवमेंट्स बता सकते हो? एनी स्टूडेंट हु कैन आंसर, महात्मा गांधी की कोई भी 5 मूवमेंट्स, कोई 5 आंदोलन महात्मा गांधी के। पूजा, हाँ आप बोलो। मैम बेटा सत्याग्रह। हाँ सत्याग्रह उन्होंने किया था, तो सत्याग्रह अलग अलग किए थे ना, तो मैं पूछ रही हूँ कौन कौन से थे वो? मैम मिठा सॉल्ट। ओके, आई टेल यू, हम 1 by 1 पहले उसको डिस्कस करते हैं। मेरीन, यस यू वांट टू से समथिंग? दांडी मार्च। दांडी मार्च, ठीक है, हम दांडी मार्च भी एक ऑप्शन जरूर लेंगे क्योंकि ये ऑप्शन मेरीन ने बोला है। अच्छा, सबसे पहले मूवमेंट हम ले लेते हैं चंपारण। अब यहाँ पे यू गाइज विल कम टू नो कि मेरी हिस्ट्री भी अच्छी है, साइंस मैथ्स के साथ साथ हिस्ट्री भी अच्छी है। ओके, सो फर्स्ट इज चंपारण मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट लेट्स सपोज हम मान लेते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये भी महात्मा गांधी की मूवमेंट थी, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है। और तीसरी मूवमेंट लेट्स सपोज, यस व्हाट मेरीन हैज सेड, दांडी मार्च। तीसरी मूवमेंट हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, सच में है ये दांडी मार्च। चौथी मूवमेंट लेट्स टेक क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। और एक और ले लेते हैं, फिफ्थ लेट्स टेक खिलाफत मूवमेंट, राइट। सो सी, ये मैंने आपको आंसर में ये जो मूवमेंट्स हैं हमने रैंडमली ले ली, चंपारण मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव, दांडी मार्च, क्विट इंडिया और खिलाफत मूवमेंट। अब अगर तो मैं इसको क्रैम करना शुरू कर दूंगी, मैं कभी ना कभी भूल जाऊंगी इन मूवमेंट्स को, कभी मुझसे कोई पूछेगा तो आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉल दिस इंफॉर्मेशन, राइट। अब यहाँ पर देखो, अब मैं आपको एक और इसके लिए टेक्निक बताती हूँ कैसे आप याद कर सकते हो। आप सब ने अपने घर को इमेजिन करना है, ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, आपने अपने घर को इमेजिन करना है। सबसे पहले अपने घर का जो मेन डोर है, जस्ट विजुअलाइज इन योर माइंड, मेरे साथ साथ आप सब ने विजुअलाइज करना है जो मैं लिख रही हूँ। मेन डोर को विजुअलाइज करो और वहां पे सोचो कि बहुत सारे फार्मर्स आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आपने ये कहानी, ये विजुअल साथ साथ में करना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। मेन डोर सोचना है सबने अपने घर का, वहां पे सोचो मेन डोर है मेरे घर का, आप सबके घर का, वहां पे बहुत सारे फार्मर्स आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, राइट।
दूसरी चीज लेट्स से कि आपके घर का ड्राइंग रूम है या फिर हॉल जिसको हम बोलते हैं। अब जो आपके घर का ड्राइंग रूम है उसको आपने विजुअलाइज करना है कि वहाँ पर महात्मा गांधी जो फॉरेन के कपड़े हैं, फॉरेन के जो क्लोथ्स हैं वो उन्होंने वहाँ पे सारे फेंक दिए, डिस्कार्ड कर दिए उन्होंने। मेन डोर के ऊपर बहुत सारे फार्मर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे ड्राइंग रूम में महात्मा गांधी ने जो फॉरेन के क्लोथ्स थे सारे फेंक दिए, डिस्कार्ड कर दिए, ठीक है। तीसरा हम घर का पार्ट लेते हैं, लेट्स सपोज किचन, लेट्स टेक किचन, राइट। तीसरा किचन हम सबके घर में होती है। किचन में आप मानो हर तरफ सॉल्ट बिखरा हुआ है, किचन में हर तरफ क्या बिखरा हुआ है, सॉल्ट बिखरा हुआ है किचन में हर तरफ, राइट। रिलेट करता है ये। चौथा हम चलते हैं लेट्स सपोज लिविंग रूम। लिविंग रूम में हम चलते हैं, वहां पे यू इमेजिन कि वहां पे जोर जोर से कोई नारे लगा रहा है। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, हमारा पर्पस है हमें इसको अच्छे से याद करना है। लिविंग रूम में कोई नारे लगा रहा है। और फिफ्थ मान लेते हैं हम अपने घर का जो है, लेट्स सपोज कोई भी एक रूम, आप अपना रूम जो आप सबका अपना रूम है, सोचो वो जो रूम है वहां पे मुस्लिम्स और हिंदूज, आई एम राइटिंग मुस्लिम एम हिंदूज एच, मुस्लिम्स और हिंदूज जो हैं वो इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब कहानी को शुरू से चलते हैं। आपके घर के मेन डोर के सामने बहुत सारे फार्मर्स जो हैं विद्रोह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। चंपारण मूवमेंट जो है, क्या हुआ था वहां पे, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था। तो मेन डोर पे मैंने क्या किया, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरी कौन सी मूवमेंट होगी, ये चंपारण मूवमेंट। उसके बाद ड्राइंग रूम में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने जो फॉरेन के कपड़े थे सारे डिस्कार्ड कर दिए। कौन सी मूवमेंट में हुआ था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे मेरी दूसरी मूवमेंट मैंने याद कर ली, नॉन कोऑपरेशन। तीसरा, किचन में हर तरफ सॉल्ट बिखरा हुआ है, किचन में हर तरफ सॉल्ट बिखरा हुआ है। तो सॉल्ट के रिलेटेड कौन सी मार्च हुई थी, जो मरीन ने भी बताया था, कौन सी मार्च है, डांडी मार्च। तीसरा ये कौन सा हो गया, डांडी मार्च। जब मेन डोर आप अपने घर का विजुअलाइज करोगे, दिमाग में आएंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चंपारण मूवमेंट। ड्राइंग रूम में महात्मा गांधी ने फॉरेन के कपड़े डिस्कार्ड करके फेंक दिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। किचन में सॉल्ट बिखरा हुआ है, जब आप किचन की तरफ देखोगे, डांडी मार्च। चौथा क्या है, लिविंग रूम में आपके नारे लग रहे हैं। तो नारे सारे इंडियन लगा रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सो दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। मान लो आपके ड्राइंग रूम में सारे नारे लगा रहे हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम आपके रूम में, आपका जो भी रूम है, लेट्स सपोज वहाँ पे मुस्लिम्स और जो हिंदूज हैं दे आर टुगेदर, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन सी मूवमेंट है ये, खिलाफत मूवमेंट। नाउ कैन एनी स्टूडेंट एक्सप्लेन मी दिस स्टोरी, एनी स्टूडेंट, बिफोर वी एंड द सेशन फॉर टुडे, कैन एनी स्टूडेंट एक्सप्लेन मी दिस स्टोरी, नॉट दिस स्टोरी, ये जो 5 मूवमेंट्स हैं कैसे हमने इसको याद किया, कैन एनी स्टूडेंट एक्सप्लेन, any volunteer student in the class? By they 1 second, Marine को बोलने दो, म्यांश second turn. Okay Marine, continue. By taking the examples of house. कैसे कैसे हमने किया, एक बार just house tour करवा दो। By in main door there was farmer protection, drawing room for volunteers clothes, third kitchen salt बिखरा हुआ था वहाँ पे। फोर्थ क्विक इंडिया मूवमेंट नारे, फिफ्थ रूम मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट, सो दैट इज खिलाफत मूवमेंट। यस राइट, ओके, सो म्यांश नाउ योर टर्न, यस प्लीज। मेन डोर पे फार्मर्स प्रोटेस्ट करने आए हैं। सेकंड, ड्राइंग रूम पे फॉरेन क्लोथ हर जगह पड़े हुए थे, गांधी जी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगी। थर्ड में किचन में हर जगह सॉल्ट पड़ा हुआ था, पूरा बिखरा हुआ था, तो वो डांडी मार्च होगी। लिविंग रूम में नारेबाजी हो रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आखिरी में मुस्लिम्स और हिंदूज एक साथ हो गए रिवोल्ट कर रहे थे। सो वो कौन सी मूवमेंट थी, खिलाफत मूवमेंट। ओके, ऑल राइट,
before ending the session, any other student who wants to try? So we have got 2 wonderful answers. Now इस तरह से इस method को हम क्या कहते हैं? We call it as Loki method और location method. Okay? So ये भी हम in the course ऐसी different चीज़ों को हम study करेंगे. So therefore, what is the purpose of today's webinar? That basically what is the vision at Study Coach? That don't cram. आपको cram नहीं करना है. Just become a smart learner. आपको चीज़ों को smartly learn करना है, right? So आज की जो generation है, आपके पास बहुत सारे tools हैं, बहुत सारी techniques हैं. You have so many scientific drills out there. So therefore, what is the mantra of this webinar? That don't cram, learn smarter. और यही हमारा purpose रहेगा throughout the session also, not to cram but learn smarter. So this was the demo session webinar related to an exclusive 1-month course that you can see on your screens. That is for class 4th and above, जिसमें कि scientific memory drills, visualization, mind mapping, mnemonics, acronyms, memory palaces. उसके बाद इसकी जो academic subjects में application है, which we call as math, science, history, geography, economics, इन सभी subjects में कैसे आप इसको practically use करोगे, कुछ examples हमने आज भी की. And lastly, we are going to finally take a test of you. This is a certification course and the classes would be on Saturday and Sunday, 1.5 hours, 1.5 घंटे की class होगी Saturday as well as on Sunday, and after every session you are going to get the study material, right? Now your questions. Any student who wants to ask any question, and then we are done with today's session. किसी भी student का कोई भी question. Alright. So this was the session for today, and I think I gave you a quite new perspective of learning. So right. So we will be practicing all these things when you come to join in the course. हम one by one इन सब चीज़ों को, in different subjects की different चीज़ों को practice करेंगे. And always remember that your brain is actually more powerful, but आपको सिर्फ और सिर्फ right guidance की ज़रूरत है. All right. So thank you very much to all the participants who have attended. Have a wonderful evening and good day.